Hello everyone, myself Vinay Mishra, working as a faculty in the Department of Mechanical Engineering of Ambalika Institute of Management and Technology, affiliated with AKTU. Today we are going to have a discussion for the subject that is the thermodynamics, the subject of BTech third semester, AKTU syllabus. In the previous lecture we have talked about some processes involved in thermodynamics, laws involved in thermodynamics, that is first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, the concept of entropy, how it is useful for mechanical components, how the concept of useful is useful in our life, how the available energy going to affect the efficiency of the engine, what is unavailable energy, what is steam, what is latent heat, what is specific heat, and so on. Today we are going to have a discussion basically on the Rankine cycle. So, starting our session with Rankine cycle. Basically the Rankine cycle is the basic cycle used for the power generation, like it is the basic cycle used in the power generation from the water, from nuclear power plant. In nuclear power plant and in thermal power plant, we are using this basic cycle. We are having some important components regarding that. What exactly happened over here in Rankine cycle? We are having different components in terms of steam turbine, boiler, condenser and feed pump. Exactly what happened in Rankine cycle? Basically, the steam is generated and from water, and this happen or this take place when certain amount of heat is being given to the system in the boiler. Now, if the steam is generated at high temperature and high pressure and it is allowed to pass through steam turbine where the expansion take place, after expansion of steam we are getting the certain amount of energy in terms of rotation from steam turbine. From if that steam turbine, if the rotation of it, if the rotation, the mechanical energy what we are getting out from the steam turbine is coupled with a generator, in that case the generator generate electricity. In this way we see that the how the water is used in power production. Rankine cycle is the basic cycle which is which uses in thermal power plant, and the basic components in Rankine cycle we are having. The first one is the steam turbine, the second one is the condenser, and the third one is the feed pump, and the last one is the boiler. If we talk about the basic component of these four, then we will see that boiler, starting from the boiler is the component which boils the water. Simply we can say boiler is the component which boils the water, or it is also known as steam generator, because if we boil the water beyond its saturation temperature, then the steam generation take place. जैसे ही पानी को बॉयल करेंगे बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर, स्टीम जनरेशन होता रहेगा और स्टीम हमें हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर मिलती रहेगी. तो इस द स्पेस वेयर दिस प्रोसेस हैपन, द स्पेस वेयर द स्टीम जनरेशन टेक प्लेस with the boiling of water, that kind of space, that kind of structure is known as the boiler. Now, what exactly happening in boiler? Exactly, we used to give certain amount of heat to the boiler, and that kind of heat is coming from the burning of coal. We are using coal basically as a basic fuel for Rankine cycle. So, when the coal burns, the kind of combustion take place, और जब combustion होगा तो गैसेस, हॉट गैसेस क्रिएट होंगी. हॉट गैसेस जो होंगी वो पानी को गर्म करेंगी. जैसे टेम्परेचर उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव हो जाएगा, ठीक है, तो स्टीम जनरेशन
होने लगेगा, स्टीम हमें मिलने लगेगी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। उस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम को हम लोग स्टोर कर लेंगे, उसके बाद हम उस स्टीम को फ्लो कराते हैं स्टीम टरबाइन। अगेन स्टीम टरबाइन, अगर हम लोग एक बात करें बॉयलर की, तो हम लोग देखेंगे कि इनपुट जो हम लोग दे रहे हैं, स्टीम की टरबाइन के बारे में भी हम लोग बात करते हैं, तो इनपुट बेसिकली जो हम लोग देते हैं दैट इज Q1, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द बॉयलर इटसेल्फ in order to raise the temperature of water beyond saturation point so that the steam generation take place after boiling. तो यहाँ पर बेसिकली जो हम इनपुट देंगे बॉयलर केस में वो होगा हीट इन द फॉर्म ऑफ कंबशन ऑफ कोल। स्टीम टरबाइन की अगर हम लोग बात करें, स्टीम टरबाइन इज द काइंड ऑफ मैकेनिकल एलिमेंट और कंपोनेंट इन विच वी आर गेटिंग द मैकेनिकल एनर्जी in the form of rotation of the shaft. What exactly happen when high temperature, high pressure steam expand over the blades? अगर हम लोग बात करें स्टीम टरबाइन की, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ब्लेड्स हैं और जैसे ही अगर इस पॉइंट पे हम लोग स्टीम P1, V1 या T1 हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, बेसिकली वॉल्यूम को नहीं लेके चल रहे हैं यहाँ पे, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे अगर स्टीम जो हमें मिल रही है, जो बॉयलर का आउटपुट है, अगर उसको हम इसके ऊपर से फ्लो कराएं, तो देन व्हाट विल हैपन, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर स्टीम विल एक्सपैंड, एंड इफ समथिंग एक्सपैंड द काइंड ऑफ वर्क डन वी अचीव. That means if the expansion is taking place, if the expansion of steam is taking place, then definitely we are getting certain amount of work done from the system itself. That means हमें कुछ work done हमको मिलेगा. जैसे expansion होगा इन blades पे, ये blades rotate करेंगे. जब ये blades rotate करेंगे तो ये output shaft यहाँ पर कहीं ना कहीं connected होता है. जब output shaft rotate करेगा, that is the form of work done what we are getting with the expansion of steam in the steam turbine or over the blade. यानी ये जो रोटेशन है यही हमारा पावर आउटपुट है स्टीम से, जो हमें मिलेगा जब एक्सपेंशन होगा, when the expansion of steam take place over the blade of steam turbine. अब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम यहां से निकल जाएगी, यहाँ से वो निकल जाएगी और हमें क्या मिलेगा, एग्जैक्टली वी आर गेटिंग वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन ऑफ द शाफ्ट. यहाँ पर जो रोटेशन मिलेगा, इस शाफ्ट को कपल्ड कर दिया जाता है जनरेटर से और यहाँ पर बेसिकली हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है. तो बेसिकली स्टीम टरबाइन इज बेसिकली द कंपोनेंट विच इन विच वी आर गेटिंग मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन ऑफ द शाफ्ट विच कैन बी ट्रांसमिटेड. That kind of rotation, that kind of power is being transmitted to the generator so that the electricity is generated in the form of current, in the form of potential difference. In this way the kind of electricity is being produced. और generator एक ऐसा component है in which the mechanical energy is converted into electrical energy. यहाँ basically the mechanical rotation हमें मिल रहा है, this rotation is converted into electrical energy. Condenser. See, condenser is basically the device or the mechanical component in which the condensation take place. Simply we can say it is a device, it is a mechanical component in which the condensation take place. Now what is condensation? Condensation is the process in which the steam get converted into liquid form. See, if we gave certain amount of heat to the water, what will happen? The kind of evaporation take place, the kind of the steam generation take place. If we give certain amount of heat to the water, that means the phase transformation take place from liquid phase to vapor phase. In that condition, what will happen? We gave certain amount of heat. We gave certain amount of heat. If we extract same amount of heat from the steam, if we extract certain amount of heat from the steam, then what will happen? The kind of condensation will take place, the kind of the process in which
the phase transformation from vapor state to liquid state take place. In this way, this process is known as condensation at constant temperature. That means condenser is the site, is the component where the condensation take place, यानी जहाँ पर कंडेंसेशन होगा. कंडेंसेशन क्या होगा? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वेपर चेंज होता है, स्टीम चेंज होता है लिक्विड में, और जब वेपर स्टीम चेंज होगा लिक्विड में तो वहाँ से सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट आपको निकालना पड़ेगा जो आपने कन्वर्जन में पहले दिया था. उस अगर सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट आप निकालेंगे तो स्टीम कन्वर्ट होगी पानी में, वाटर में. दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. दस in case of condenser the certain amount of heat rejection is there. certain amount of heat rejection is there. heat rejection होता है, certain amount of heat बाहर निकलती है हमारी कंडेंसर में. feed pump which is used to simply raise the pressure as well as temperature of the water itself. simply water को हाई प्रेशर पर पहुंचाना है तो हम लोग फीड पंप यूज करेंगे. अब देखते हैं अरेंजमेंट. दिस इज बेसिकली द बॉयलर विच इज यूज्ड टू जनरेट हीट, हमें पता है. दिस इज स्टीम टर्बाइन. यहाँ पर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम एंटर करेगी और हमें रोटेशन मिलेगा. जैसे एक्सपेंशन होगा, हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया, रोटेशन मिलेगा. उस रोटेशन को सीपी यानी कपलिंग के थ्रू हमने जनरेटर से जोड़ दिया है. इसका कनेक्शन बॉयलर का आउटपुट स्टीम टर्बाइन के इनपुट से है. बॉयलर का कनेक्शन स्टीम टर्बाइन के इनपुट से. स्टीम टर्बाइन का आउटपुट अगर हम लोग स्टीम के फॉर्म में बात करें तो कंडेंसर से है, लेकिन अगर पावर के फॉर्म में बात करें तो द आउटपुट शाफ्ट ऑफ स्टीम टर्बाइन इज कपल्ड विद द जनरेटर विद द हेल्प ऑफ कपलिंग. अगर आउटपुट शाफ्ट की बात करें तो वो जुड़ा होता है जनरेटर से, किसके थ्रू? कपलिंग के थ्रू. ओके. अगर स्टीम के टर्म्स में बात करें तो स्टीम टर्बाइन का आउटलेट कंडेंसर के इनपुट से जुड़ा होगा और कंडेंसर का आउटपुट एक रिसीवर होगा. रिसीवर बेसिकली यहाँ पे रिसीवर का कोई फंक्शन नहीं है, एक वो पानी को रिसीव कर लेता है, ठीक है, वाटर को रिसीव कर लेगा जो कंडेंस होकर के यहाँ पर आएगा. इसलिए यहाँ पर देखिए प्रोसेस को चेंज नहीं किया क्योंकि यहाँ पे किसी तरीके का प्रोसेस नहीं हो रहा है. फीड पंप, प्रेशर को बढ़ाना है पानी के ताकि यहाँ पर पानी पहुँच पाए और हाई प्रेशर पे पहुँच पाए. तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि बॉयलर का आउटपुट जुड़ा है स्टीम टर्बाइन के इनपुट से. स्टीम टर्बाइन का आउटपुट इन टर्म्स ऑफ स्टीम, आउटपुट यहाँ पे दो हैं बेसिकली. वर्क आउटपुट की बात हम लोग करेंगे तो अलग, अगर स्टीम आउटपुट की बात करेंगे तो अलग. स्टीम का आउटपुट कनेक्टेड है कंडेंसर से, देन रिसीवर, देन फीड पंप, देन बॉयलर. आउटपुट स्टीम का रोटेशन के फॉर्म में अगर हम लोग बात करें तो वो कनेक्टेड होता है जनरेटर से. जनरेटर से हमको पता है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया, जो भी रोटेशन होगा स्टीम टर्बाइन से रोटेशन जो हमको मिलेगा कपल के थ्रू रोटेशन इनपुट होगा जनरेटर में और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी यानी पावर प्रोडक्शन होगा यानी पावर जनरेट होगा. ठीक है. अब बॉयलर की अगर हम लोग बात करें, हमें पता है हीट इनपुट. बॉयलर में हम क्या करते हैं, हीट देते हैं किसको? पानी को. ठीक है. वाटर, the heat is being added to the water in order to generate steam. Boiler is the site, boiler is the component where the steam generation take place, and steam generation only take place when we give certain amount of heat to the water so that it will reaches beyond boiling point, due to which the steam generation take place. यहाँ पर पानी होगा, ठीक है. उस पानी को हम गर्म करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाएंगे, उससे ऊपर पहुंचाएंगे ताकि स्टीम जनरेशन हो सके. यहाँ पर जो हीट हम देंगे वो हीट देंगे कंबस्शन ऑफ कोल. यहाँ पर जो कोयला हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर बेसिकली जो फ्यूल यूज़ होता है वो कोयला जनरली यूज़ होता है. कोयला यूज़ करते हैं क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में है वो है. तो अगर यहाँ पर सर्टेन अमाउंट ऑफ जो कंबस्शन हमने क्रिएट करवाया, if the combustion will take place, then the certain amount of heat is being added to the water. यानी जो हीट कंबस्शन के बाद निकलेगी वो वाटर को जाएगी, वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएगी. सैचुरेशन टेम्परेचर से जैसे ही वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा स्टीम जनरेट होगी और यहाँ पर हमको मिलेगी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर स्टीम. नाउ व्हाट वी आर गेटिंग ओवर हियर, वी आर गेटिंग हाई टेम्परेचर
high pressure steam over here at point 1. हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम इनलेट होगी किससे? स्टीम टरबाइन के, स्टीम टरबाइन से इनलेट होगी। जैसे ही स्टीम टरबाइन के ब्लेड पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम एक्सपैंड करेगी, वी आर गेटिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क, वी आर गेटिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रोटेशन, इन टर्म्स ऑफ रोटेशन ऑफ द शाफ्ट। जैसे ही एक्सपेंशन होगा हमें शाफ्ट रोटेट करने लगेंगे, उस शाफ्ट को कनेक्शन कपलिंग के थ्रू जनरेटर से कर देंगे, और जनरेटर के जैसे ही इनपुट घूमेगा, रोटेट करेगा, वर्क डन होगा, तो यहाँ पर हमें बिजली मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये तो बात हो गई आउटपुट किसकी? स्टीम टरबाइन की। इसलिए यहाँ पर देखिए वर्क आउटपुट लिखा हुआ है। वर्क आउटपुट इन द सेंस, द आउटपुट इन द सेंस ऑफ रोटेशन, द आउटपुट इन द सेंस ऑफ पावर रोटेशन, ठीक है, टॉर्क इंटू ओमेगा, और 2 पाई इंटू 60, P इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 60, 2 पाई N is the rotation, T is the torque, 2 pi NT upon 60, N is the number of RPM, or we can say the speed of this rotational shaft. This is power basically. तो यहाँ पर जो हमें वर्क आउटपुट मिल रहा है, वर्क इन द सेंस ऑफ रोटेशन वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर, ओके। सो वर्क आउटपुट यहाँ पे लिख दिया हमने, हीट यहाँ पे दिया था तो इनपुट कर दिया, यहाँ पे हमें मिल रहा था वो चीज़ें, वी आर गेटिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क डन, देन इन दैट केस हमने उसको बाहर की तरफ एरो लगाया है, कंडेंसेशन। अब क्या होगा, यहाँ पर जो स्टीम है वो कन्वर्ट होगी लो प्रेशर लो टेम्परेचर स्टीम में। जब तक उसने एक्सपेंशन हो गया, उसने अपना काम कर दिया, वर्क डन हमें मिल गया। अब क्या हुआ, अब वो जो स्टीम है जो हाई एनर्जी पे थी, उसने एनर्जी अपनी दे दी, वर्क डन प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। वर्क डन प्रोड्यूस होने के बाद जो हमें अब जो स्टीम मिली है वो कम एनर्जी की होगी, यानी उसके टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर कम होगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारे पास जो स्टीम है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे है, यहाँ पर जो हमारे पास जो स्टीम है वो लो टेम्परेचर लो प्रेशर पे है। लो टेम्परेचर लो प्रेशर स्टीम को कंडेंसर से प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ पर वाटर आएगा, कोल्ड वाटर आएगा, देखिए यहाँ पे कोल्ड वाटर लिखा हुआ है, कोल्ड वाटर आएगा, हॉट बन के चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, कंडेंसेशन हो रहा है, कंडेंसर में कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन का मतलब ये है कि जो स्टीम कन्वर्ट होगी लिक्विड में, एंड इफ द कन्वर्जन ऑफ स्टीम इज देयर इनटू लिक्विड फॉर्म, then the kind of heat extraction take place, the kind of heat is being rejected from the system. As we have discussed earlier, in condensation process the amount of heat rejected from the system, और वो जो रिजेक्शन होगा इस हीट का वो एब्जॉर्ब होगा इस कोल्ड वाटर में, तो ये वाटर हीट अप हो जाएगा और हॉट वाटर बाहर कर दिया जाएगा। इन दिस वे दिस इज सिंपल रैंकाइन साइकिल वी आर टॉकिंग अबाउट। सो यहाँ पर अब क्या हुआ, लो प्रेशर लो टेम्परेचर स्टीम चेंज हो गई है, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी जो हमें यहाँ पर 3 पे मिला है वो हमें मिला है लिक्विड वाटर, और वी कैन से एट पॉइंट नंबर 3 वी आर गेटिंग एग्जैक्टली द काइंड ऑफ वाटर विच इज ऑफ लो प्रेशर और लो टेम्परेचर, विच इज ऑफ लो प्रेशर लो टेम्परेचर। यहाँ से दौरान ये जो कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ है ये बेसिकली तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस पे हुआ है, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही लेटेंट हीट जो हम लोगों ने वेपोराइजेशन पे देंगे वही सेम अमाउंट ऑफ लेटेंट हीट जो है यहाँ पर एक्सट्रैक्शन होगा, रिजेक्शन होगा, इसीलिए टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है। लेटेंट हीट के केस में टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर लो टेम्परेचर लो प्रेशर स्टीम कन्वर्ट हो गई 3 पे, यानी लिक्विड के फॉर्म में, तो यहाँ पर हमें लिक्विड मिल गया। अब ये लिक्विड रिसीवर में रिसीव हो गया, ये लिक्विड रिसीवर में रिसीव हुआ, कलेक्ट हो गया। यहाँ पर अब इस लिक्विड को जो लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड इन द सेंस वाटर की हम लोग बात करें, लिक्विड का मतलब वाटर, अगर हम लोग वाटर यूज कर रहे हैं तो वाटर, तो यहाँ पर लो टेम्परेचर लो प्रेशर वाटर फ्लो होगा फीड पंप के थ्रू बॉयलर में चला जाएगा, जहां पर प्रेशर इसका इंक्रीज कर जाएगा, थोड़ा बहुत टेम्परेचर भी चेंज होगा। इस तरीके से सेम अब यहां पर पानी आ गया है, जो पहले हम लोग पानी यूज करते थे, यहां पर पानी आया है, फिर से हीट देंगे हम, स्टीम जनरेट होगी, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम होगी,
हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम एक्सपेंशन होगा स्टीम टरबाइन में। स्टीम टरबाइन में एक्सपेंशन होने के बाद वर्क आउटपुट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन, दैट इज बीइंग द रोटेशन is being transmitted to the generator with the help of coupling, and from generator itself we can have the certain amount of electricity, or we can say the power is generated. और again high pressure high temperature जो expansion के बाद हमें steam मिल रही है वो low pressure low temperature में मिल रही है, उसके बाद कंडेंसर से गुजार करके उसको वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, रिसीव कर लिया जाएगा फीड पंप के थ्रू, बॉयलर में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस तरीके से ये साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहेगी। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या दिया है यहाँ पे, पहला तो पानी है, दूसरा हीट इनपुट कोल, with the help of coal the combustion is created, due to that combustion the certain amount of heat is given to the water itself to raise its temperature beyond boiling point to generate steam, यानी स्टीम को जनरेट करने के लिए हम लोगों ने कंबशन करवाया है कोल का और हीट ऐड किया है पानी में ताकि वो स्टीम का जनरेशन हो। तो बेसिकली हम लोगों ने इनपुट जो दिया है यहाँ पे कोल के फॉर्म में दिया है, और यहाँ पे थोड़ी बहुत पावर हम लोग इसको चलाने के लिए भी देंगे। तो यहाँ पर इसलिए लिख रखा है बेसिकली वर्क इनपुट, यहाँ पर हमें वर्क आउटपुट मिल रहा है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, और यहाँ पे हमें हीट रिजेक्शन मिल रहा है। बेसिकली हमको जो मिल रहा है यहाँ पे हीट रिजेक्शन। ओके, तो इस तरीके से अरेंजमेंट और वर्किंग हम लोगों ने देखा। अब देखते हैं आगे, अगर हम लोग डिफरेंट स्टेट में बात करें कि कंडीशन क्या है, कहाँ पे टेम्परेचर है, कहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, इसके बारे में डिस्कशन किया था। थोड़ा सा एक बार और डिस्कशन कर लेते हैं, एक बार डीपली समझ लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि 1 इज बेसिकली हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम, 1 is basically high temperature high pressure steam. Of course the temperature as well as pressure is high at this point. Point number 2, स्टीम है हमारे पास, यहाँ पर भी स्टीम थी, फेज सेम है, फेज का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, टेम्परेचर ज़्यादा था, टेम्परेचर कम हो गया। यानी 2 पॉइंट पे वी आर हैविंग बेसिकली द स्टीम विच इज़ ऑफ लो टेम्परेचर लो प्रेशर लो टेम्परेचर स्टीम। 3 पे फेज चेंज हो गया। फेज चेंज होने का मतलब जो स्टीम थी हमारी कन्वर्ट होके आ गई है लिक्विड फॉर्म में। 3 पॉइंट पे हमें लिक्विड मिल गया है, लो प्रेशर लो टेम्परेचर वाटर का मतलब लिक्विड। 3 पॉइंट पे यहाँ से यहाँ देखिए चेंज नहीं हुआ है। चेंज क्यों नहीं हुआ है? हम ये मान के चले रिसीवर किसी तरीके से, रिसीवर जो है कोई फंक्शन नहीं कर रहा है, किसी तरीके का कोई प्रोसेस नहीं हो रहा है, सिर्फ उसको कलेक्शन एज ए डिवाइस रखा गया है, एज इंटीग्रल पार्ट नहीं है जिसमें किसी तरह का प्रोसेस का चेंज हो। फीड पंप 3 से 4 के बीच में आप बात करें तो 3 पे प्रेशर कम है, 4 पे प्रेशर हमारा बेसिकली ज़्यादा हो। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कैसे अलग अलग स्टेट पे कंडीशन स्टीम की बदल रही है और किस तरीके से प्रेशर टेम्परेचर बदल रहा है। अब हम लोग बात करें प्रोसेस की, कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं। अगर थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस की बात करें कौन कौन से हो रहे हैं तो उसके बारे में हम लोग को समझना है यहाँ पे। बेसिकली अब हम लोग बात करेंगे 1 से 2 स्टीम का कन्वर्जन हो रहा है। फ्रॉम 1 से 2 प्रोसेस द स्टीम इज कन्वर्टेड फ्रॉम हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर टू लो टेम्परेचर low pressure. The process in which the steam is converted from high temperature high pressure to low temperature low pressure. Okay, और ये जो expansion होगा, the kind of expansion what exactly happening over here is something like isentropic expansion we can say. जो भी process होगा उसको हम कहेंगे this is isentropic expansion. Why we are using the term isentropic? Isentropic in the sense constant entropy process, reversible adiabatic process. This is reversible adiabatic process. We are considering it as a reversible adiabatic process in which the entropy remain constant, and if the entropy remain constant, the process of expansion is known as isentropic expansion. Okay, in this way we have seen that the kind of entropy remain constant during this process, the process is known as
constant entropy or isentropic process. 2 to 3, as we have already talked about 2 to 3 process, it is a process in which the kind of condensation of steam take place into liquid form, and if this kind of things are happening, in that case we can simply say that the kind of heat get extracted from the system, heat rejection take place, or that kind of heat rejection may be regarded as heat output, or we can say Q2. So, this is basically 2 to 3 is condensation process which take place at constant temperature. 2 to 3, 3 to 4, 3 to 4, 3 to 3 no process, nothing like that, no changes. 3 to 4, this is basically pump feeding water with increase in pressure. This is basically the process in which the water is feeded at high pressure to the boiler. 4 to 1, 4 to 1, 4 to 1 is basically the boiling or steam generation. This is the process in which the steam generation take place, or this is also known as boiling. In this process, as we already discussed, that here the steam is generated only if we give certain amount of heat to the system, so that its temperature of the water raises beyond its boiling point. जैसे ही हम इसमें हीट देंगे तो होगा क्या, इसका टेम्परेचर राइज करेगा, जैसे बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर टेम्परेचर राइज करेगा वैसे ही स्टीम जनरेशन स्टीम जनरेशन होगा। स्टीम जनरेशन होने की वजह से यहाँ पर हमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर स्टीम हमको मिलेगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि बेसिकली वी आर हैविंग 4 प्रोसेस, 1 to 2 isentropic expansion of steam, 2 to 3 condensation in which the certain amount of heat is rejected. In isentropic expansion, we are getting certain amount of work done from the system itself. In terms of rotation, okay. So, in isentropic process we are getting certain amount of work done. In case of condensation process, the heat is rejected from the system. In case of feed pump, the certain amount of work done given to the system, and in case of boiler, the heat is being given to the system. In this way, we have seen that how Rankine cycle works and how the power is generated, और पानी से किस तरीके से गर्म करके हम लोग स्टीम जनरेट करते हैं और कैसे पावर प्रोडक्शन होता है। तो आगे की क्लासेस में हम लोग देखेंगे और थोड़ा सा डीपली जानने की कोशिश करेंगे कि रैंकिन साइकिल में कैसे वर्क करती है, और इसमें एनालिसिस पार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, और इक्वेशन और एफिशिएंसी रैंकिन साइकिल की कैसे निकालते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।